Hello. Yes, just 1 minute. Okay, you can start now. Hello. Good afternoon, sir. So I guess, sir, your mic is mute, sir. Mehul, sir. Hello. Hello. Yes, sir. You are audible. Perfectly audible. Okay. Thank Good you. afternoon, sir. So starting with the webinar, first of all, I would like to welcome Dr. Mehul, sir. Dr. Mehul Shah. And I, Parth Chabra, Assistant Professor from Faculty of Commerce, Parul University. On behalf of Dean, sir, and Parul University, I have been very much fortunate that I have received this responsibility and opportunity to welcome you. First of all, starting with a brief introduction of Dr. Mehul, sir. Afterwards, we'll hand over the session to Mehul, sir. So, currently, if we talk about the a speaker, honorable speaker, Mehul, sir, is working as an assistant professor in Navi Commerce College, Surat. Secondly, he is the managing editor of Ideas International Multidisciplinary Research Journal, published biannually by JZ Shah and HP Desai Commerce College, Amroli. He has been working on ICSSR grant and other government research projects. Fourth, he has been recognized as the PhD supervising teacher in the subject of commerce and accountancy under the Faculty of Commerce by Veer Narmad South Gujarat University. He has been also the member courses to be offered under the ODL Massive Open Online Course Committee at VNSJU. He has been invited as a member of Board of University Publication in VNSJU. Afterwards, talking about he has been the member of planning of museum funding proposal under the Ministry of Culture, Government of India at VNSJU. He has been in the conference as a secretary 2 times. He has been a keynote address 1 time. He has been the technical chairperson in the conference at 1 time. He has participated in the faculty development program 3 times. He has published the books 12 times. He has number of other publication research papers, 12 research papers say for it. Another is his research presentation is nearly 6 times, and he has been as a guest lecturer 8 times. Right. His special achievements, if we see, so he has played a key role in getting ISBN number for JZ Shah and Arts and HP Desai Commerce College, Amroli. He has been played a key role in getting ISSN number for ID's online multidisciplinary research journal published by JZ Arts and HP Desai Commerce College, Amroli. He has been successfully completed orientation program at HRDC Ahmedabad with grade A, which was held in June 2015. He received the Best Paper Award for paper entitled A Financial Ratio Analysis of Chambal Research Fertilizer and Chemical Limited, published in the Research Matrix International Disciplinary Journal. He has paper experience of paper setter in various university examinations conducted by Veer Narmad South Gujarat University Limited. Over to you, sir. Thank you, sir. Thank you very much for a wonderful introduction. Thank you, sir. The stage is all yours, sir. Thank you. Thank you, sir. I hope my screen is visible. Yes, sir. Okay. Very good afternoon to everyone. Today we are here to discuss a very interesting topic, not a boring topic, but a very interesting topic, that is goods and service tax. Now, by this session, we'll discuss which are the fundamentals and which are the changes in previous tax systems. So today, with the end of this session, every students of the Parul University of Department of Commerce
will get in-depth knowledge about what is GST, which are the fundamental changes of GST. Okay, so before starting it, before implementation of GST, the previous taxes which are charged by central and state government are this. Central government is charging service tax, countervailing duty, special additional custom duty, central excise duty, additional excise duty, and in the same parallel charges, state government is charging entry tax and octroi, luxury tax, purchase tax, entertainment tax, sales tax, and lottery and betting gambling tax. Now, there are certain what I can say limitations of the previous tax system. That's why the government has introduced GST. Now, before starting to understand GST, first we will understand what is direct and indirect tax. First is direct and second one is indirect. Now, a very simple definition of direct tax, which is paid by directly to the user. Okay, जो टैक्स कंज्यूमर डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे करता है, it is considered as direct tax. But the tax which is shifted to the third party, okay, जो टैक्स एंड यूजर या मैन्युफैक्चरर खुद पे नहीं कर रहा है, बट विच इज शिफ्टेड टू दी अनदर पार्टी, उसको हम बोलेंगे इनडायरेक्ट टैक्स. ये याद रखिएगा फ्रेंड्स, डायरेक्ट टैक्स it is paid by the first holder itself, but indirect tax we are shifting to the another person or third party. Now GST is a third party, GST is a kind of indirect tax. Okay, so it is clear that GST एक indirect tax है. Now there are certain kind of GST. Okay, बहुत सारे GST है, उसमें से first है CGST, second one SGST, third one UTGST, fourth one IGST. Now what is C, S, UT and IGST will understood slowly. Okay, बहुत अच्छे से समझेंगे. Now GST के GST मॉडल दो तरह से है फ्रेंड्स. फर्स्ट सिंगल GST एंड सेकंड ड्यूअल GST. Single GST and dual GST. Now India is having dual GST model. Keep in mind friends, India is having dual GST model. Now again question will arise कि इंडिया ने क्यों dual GST model accept किया है. Okay, single GST का मतलब क्या होता है, where only the single authority is having the power to charge the tax. जहां पर कोई एक ही अथॉरिटी, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो खुद ही टैक्स चार्ज करेगी, उसके सिवाय किसी और पर्सन या किसी और लेजिस्लेशन को अथॉरिटी नहीं है टैक्स चार्ज करने के लिए, तो उसको हम बोलेंगे सिंगल GST मॉडल. नाउ इंडिया इज हैविंग ड्यूअल GST मॉडल. माय फ्रेंड्स, इंडिया इज द थर्ड कंट्री फॉर एक्सेप्टिंग ड्यूअल GST मॉडल. फर्स्ट कंट्री थी कनाडा, second three Brazil, and third one is India. Now why it is necessary? Okay, ऐसी क्या रिक्वायरमेंट थी कि इंडिया को ड्यूअल GST मॉडल ही एक्सेप्ट करना पड़े. Okay, so it is very much clear that India is having its federal kind of tax system. Okay, again repeating, India is having federal kind of tax system. अभी बोलेंगे अभी GST तो समझा नहीं सर, फेडरल टैक्स क्या आ गया. Now, federal tax system means where both the authority, central as well state. Okay, again repeating, where both the authorities, central government
as well state government is having power to charge the taxation. उसको हम बोलेंगे फेडरल काइंड ऑफ टैक्सेशन सिस्टम. तो इंडिया में हर एक स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के खुद के लेजिस्लेशन है माय फ्रेंड्स. ओके, सो सेंट्रल गवर्नमेंट भी टैक्स चार्ज करते हैं और स्टेट गवर्नमेंट इज आल्सो लायबल टू चार्ज द टैक्स. अगर मान लीजिए कि इंडिया ने सिंगल जीएसटी मॉडल एक्सेप्ट कर लिया, मतलब सिर्फ ओनली द सेंट्रल गवर्नमेंट इज हैविंग पावर टू चार्ज द टैक्स. मान लीजिए कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट इज हैविंग द चार्ज पावर टू चार्ज द टैक्स, तो क्या होगा? सिर्फ टैक्स कलेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगी, तो स्टेट गवर्नमेंट के पास अर्निंग जनरेशन कहां से होगा? ओके, और कोई भी लॉ बनता है माय फ्रेंड्स, तो उसकी एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है. ओके, लोकसभा और राज्यसभा से वो ड्राफ्ट पास होता है और उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसके ऊपर साइन करेंगे, तो ही वो उसको हम एक्ट बोलेंगे. ओके, मान लीजिए लोकसभा और राज्यसभा में भी वो बिल पास हो गया और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उन्होंने उसके ऊपर साइन कर दिया और जीएसटी का सिंगल मॉडल वो एक्ट बनकर बाहर आ गया. तो कोई भी एक्ट अगर बन जाए तो उसके लिए भी विद इन 1 ईयर अगर 50% से ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट उसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है, तो वो एक्ट फिर उसको रिजेक्ट करना पड़ेगा. ओके, सो मान लीजिए कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ही सिर्फ टैक्स चार्ज कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स चार्ज करने की कोई भी पावर नहीं है, then why should the state government will support this kind of single GST model? Okay, so state government तो अथॉरिटी देने के लिए, टैक्स कलेक्शन के पावर देने के लिए India has accepted dual GST model where central government and state government is having equal power. Okay, repeat कर रहा हूँ फ्रेंड, central as well state government both are having equal power. Now when I say equal power means GST के जो भी taxation rate है, either we are charging 5%, 12%, 18% और 28%, उसमें से इक्वल पोर्शन स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा और इक्वल पोर्शन सेंट्रल गवर्नमेंट को. अगर 18% जीएसटी टैक्स चार्ज करना है तो 9% चार्ज करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट और 9% स्टेट गवर्नमेंट. Now let us understand the 4 words. What is CGST, what is SGST, what is UTGST and what is IGST. Okay. Now to understand it we have to understand some transactions. तो थोड़े ट्रांजेक्शन समझेंगे. Now if I am doing transaction within the same state, अगर मैं सिर्फ एक ही स्टेट में ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ, मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, सप्लाई कर रहा हूँ, एंड यूजर भी एक ही स्टेट में है. मान लीजिए मैं गुजरात में मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ और मैं जिसको सप्लाई कर रहा हूँ वो पर्सन, वो ट्रेडर भी गुजरात में ही है. ओके, सो CGST and SGST is implemented. Okay, if I am producing in the same state और मैं सप्लाई भी सेम स्टेट में ही कर रहा हूँ तो CGST and SGST चार्ज होगा. ओके, अगर मैं सेम स्टेट में ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ तो इट इज कंसिडर्ड एज इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन, इंट्रा स्टेट. ओके, और हर एक इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन में CGST सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों 50-50% इक्वल रेशियो से जीएसटी चार्ज करेंगे. ओके, नेक्स्ट इज UTGST. ओके, मान लीजिए आई एम नॉट अ स्टेट बट वी आर इन यूनियन टेरिटरी. ओके, so union territory is having power to charge UTGST. Okay, union territory charge करेगा UTGST. UTGST is a substitute of SGST. Okay, means अगर मैं गुजरात से कोई ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ माय फ्रेंड्स, so CGST and SGST is implemented. बट मान लीजिए मैं अगर कोई यूनियन टेरिटरी से ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ, मतलब मैं सेम यूनियन टेरिटरी से वही सेम यूनियन टेरिटरी में सप्लाई कर रहा हूँ मैन्युफैक्चरर को, ट्रेडर को या एंड यूजर को, कंज्यूमर को, so then CGST and UTGST will be applied. CGST and UTGST. UTGST stands for Union Territory.
So CGST, it is a power of central government, and UTGST, it is a power of union territory of the region. Okay, उनका जो legislation है उनके अकॉर्डिंगली UTGST तो यूनियन टेरिटरी उसके ऊपर टैक्स चार्ज करेगी. Okay, coming to third category, IGST. What is IGST? So if I am doing transaction from one state to another state, means I am crossing the limit of single state. अगर मैं गुजरात से बाहर किसी को सप्लाई कर रहा हूँ या मेरे एंड यूजर गुजरात के बाहर है, ओके, सो वो IGST में फॉल होगा. ओके, सो वहां पर IGST चार्ज करना है मुझे. तो IGST सिंगल कंपोनेंटेड टैक्स है, मतलब अगर 18% टैक्स चार्ज करना है, सो इफ आई एम डूइंग ट्रांजैक्शन इन गुजरात टू गुजरात, so 18% bifurcate हो जाएगा CGST and SGST. But if I'm doing transaction from Gujarat to Maharashtra, okay, so in that case IGST is implemented and singly 18% IGST charge करेंगे. Okay, previous term में क्या था? If I'm doing from Gujarat to Gujarat, तो CGST 9% and SGST 9%. But अगर मैं गुजरात से बाहर ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ from Gujarat to Maharashtra, so remember friend, एक ही स्टेटमेंट है. If I'm crossing the limit of the same state, अगर मैं गुजरात से बाहर चला जा रहा हूँ कोई भी स्टेट में, महाराष्ट्र, राजस्थान, केरला, whatever the state may be, but if I'm crossing the limit of my same state, so the transaction is liable to charge under IGST. Okay, IGST charge होगा. So again हमने सीखा CGST, it is implemented. CGST and SGST चार्ज होगा जहां पर हम सेम स्टेट में, एक ही स्टेट में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं. ओके, रिमेंबर फ्रेंड, अगर हम एक ही स्टेट में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, सो CGST इज इंप्लीमेंटेड and CGST and SGST in equal proportion. If I am doing transaction in the UTGST, अगर हम कोई यूनियन टेरिटरी में, so CGST as well UTGST is implemented. CGST and UTGST. अभी मान लीजिए मैं कोई एक यूनियन टेरिटरी में हूं और कोई दूसरी यूनियन टेरिटरी में ट्रांजैक्शन कर रहा हूं. ओके, मान लीजिए मैं गोवा से गुड्स मैन्युफैक्चर करके दीव दमन भेज रहा हूं. अगेन सेम स्टेटमेंट इज इंप्लीमेंटेड. इफ आई एम क्रॉसिंग द लिमिट ऑफ माय रीजन, अगर मैं मेरे रीजन से बाहर जा रहा हूं, so the transaction is liable to charge IGST. IGST चार्ज होगा यहाँ पर. तो IGST अभी उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन है, वो एट द एंड सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को ही उसका जो भी फंड है वो ट्रांसफर कर देगी. तो वो कैसे ट्रांसफर करेंगे वो हम बाद में डिस्कस करेंगे. ओके, CGST, IGST, UTGST एंड SGST. इसके अलावा अनदर एक GST है, उसको हम बोलेंगे GST कंपेंसेशन सेस. GST कंपेंसेशन सेस. अभी जैसे कृषि कल्याण सेस होता है माय फ्रेंड्स, एजुकेशन सेस होता है, वैसे ही GST कंपेंसेशन सेस भी अवेलेबल है. अब ये क्या है GST कंपेंसेशन सेस, कैसे कलेक्ट होगा, किनको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे. ओके, सो ये टाइप्स ऑफ GST. ओके, कब कहां पर चार्ज होगा ये हमने सीख लिया. जो प्रीवियस टर्म में टैक्स सिस्टम था माय फ्रेंड्स, उसके बहुत सारे लिमिटेशंस थे. मतलब वो कैस्केडिंग इफेक्ट होती थी, मतलब डबल टैक्सेशन होता था. ओके, जो ट्रांजैक्शन के ऊपर जो गुड्स मैंने मैन्युफैक्चर करके मैंने एक्साइज उसके ऊपर पे किया है, अगर सेम मैं आगे कोई दूसरे मैन्युफैक्चरर को या ट्रेडर को सोल्ड कर रहा था, तो अगेन उसके ऊपर भी एक्साइज पे करना होता था. तो प्रीवियस टैक्स सिस्टम में एक्साइज या जो भी थी लिमिटेशंस थी जो डबल टैक्सेशन की थी, उसको रिवाइज करने के लिए, वो डबल टैक्सेशन न हो जाए वो चेंज करने के लिए, उसकी लिमिटेशन दूर करने के लिए GST इंट्रोड्यूस हुआ है. ओके, सो सेकंड उसका कंपोनेंट है सीमलेस. सीमलेस क्रेडिट रीजाइन. Seamless credit regime. Now, when I say seamless,
मतलब विदाउट एनी काइंड ऑफ लिमिटेशन. ओके, व्हेन आई से सीमलेस, विदाउट एनी काइंड ऑफ लिमिटेशन. एंड क्रेडिट रिजाइन मतलब आपने जो प्रीवियस टर्म में पे किया था वो मुझे करंट बिल में रिकॉल करना है. ओके, बिफोर अंडरस्टैंडिंग इट विल अंडरस्टूड द डेफिनेशन व्हाट इज जीएसटी, ये समझेंगे सबसे पहले. Okay, now GST is a indirect, one kind of indirect tax for the whole nation, which will make India one unified common market. Okay. GST is a single tax on the supply of goods and service, right from the manufacturer. My friend, it is important. Right from the manufacturer, manufacturer से लेकर उसका end कहाँ पर है? Consumer. Okay, जो end user है consumer. Okay, manufacturer से लेकर. Again, ये सेशन स्टार्ट करने से पहले हमने बोला कि GST is a kind of indirect tax. Okay, so मैन्युफैक्चरर भी क्या करता है? वो डायरेक्ट टैक्स नहीं पे करता, खुद के पॉकेट से नहीं पे कर रहा है, वो तो शिफ्ट कर रहा है. ओके, उसके आगे वाली पार्टी के ऊपर. और लास्ट में टैक्स कौन पे करेगा? एंड यूजर, मतलब कंज्यूमर. क्रेडिट ऑफ द इनपुट टैक्स पेड एट ईच स्टेज, ओके, विल बी अवेलेबल इन द सब्सिक्वेंट स्टेज ऑफ वैल्यू एडिशन. मतलब आपने जो रॉ मटेरियल परचेस किया है, अगर उसके ऊपर आपने जीएसटी पे किया है और वैल्यू एडिशन करने के बाद आप कोई थर्ड पार्टी को सोल्ड कर रहे हो. ओके, सो प्रीवियस टर्म में आपने जो भी जीएसटी पे किया था वो आपको सेकंड वाले ट्रांजैक्शन में हमें क्रेडिट मिल जाएगी वहां पर. ओके, सो द फाइनल कंज्यूमर विल दस बेयर ओनली द जीएसटी चार्ज्ड बाय द लास्ट डीलर इन द सप्लाई चेन. ओके, लास्ट डीलर के पास से कंज्यूमर ने जो परचेस किया है उतना ही अभी कंज्यूमर को पे करना है, विद सेट ऑफ बेनिफिट्स at all the previous stage, previous term में हर एक पार्टी को, either we are manufacturer, either we are trader, either we are service provider. मैंने previous term में जो भी GST पे किया है my friends, वो मुझे immediate credit मिल जाएगा. Okay, so it is seamless credit regime. Again we are coming to the point. Now, again, repeating the word, what is seamless means it is no limit, there is no limit. Now, अभी सेट ऑफ कैसे करेंगे? मान लीजिए हमने फर्स्ट ट्रांजैक्शन ऐसा बोला कि इफ आई एम डूइंग ट्रांजैक्शन फ्रॉम गुजरात टू गुजरात, मतलब मैं गुजरात से ही रॉ मटेरियल परचेस कर रहा हूं और गुजरात में ही सोल्ड कर रहा हूं. ओके, तो मान लीजिए मैंने मैन्युफैक्चरिंग के लिए रॉ मटेरियल गुजरात से परचेस किया है. तो गुजरात से परचेस किया तो माय फ्रेंड्स कौन सा जीएसटी होगा? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी. मतलब जो भी रॉ मटेरियल मैंने परचेस किया है उसके ऊपर मैंने सीजीएसटी एंड एसजीएसटी ये पेमेंट किया है. ओके, नाउ आई एम डूइंग वैल्यू एडिशन ऑन दिस रॉ मटेरियल. मैं रॉ मटेरियल के ऊपर वैल्यू एडिशन कर रहा हूं और कोई थर्ड पार्टी, मान लीजिए ये नाम के बंदे को, आई एम सेलिंग इट टू ओनली द पर्सन इन गुजरात, मैं गुजरात में ही सोल्ड कर रहा हूं. सो ये मैंने जो भी वैल्यू एडिशन किया है और मैं थर्ड पार्टी को सोल्ड कर रहा हूं, अगेन द ट्रांजैक्शन इज विद इन स्टेट, एक ही स्टेट में. तो दिस ट्रांजैक्शन इज लायबल टू चार्ज सीजीएसटी एंड एसजीएसटी. ओके, इसके ऊपर मुझे सीजीएसटी और एसजीएसटी पे करना है. सो नाउ अभी सेटअप कैसे होगा? सो जो सीजीएसटी मतलब जो रॉ मटेरियल में मैंने सीजीएसटी परचेज किया था ये यहाँ से सेटअप हो जाएगा और एसजीएसटी रॉ मटेरियल में जो था वो यहाँ से सेटअप हो जाएगा और एडिशनल जो भी बाकी है वो मुझे पे करना है. नाउ इट इज सीमलेस क्रेडिट रिजाइम. इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसकी वजह से हमने जीएसटी इंट्रोड्यूस किया है. इट इज द मेन रीजन टू इंट्रोड्यूस जीएसटी. क्योंकि हम प्रीवियस टैक्सेशन सिस्टम की बहुत सारे लिमिटेशन थी, वो रिमूव करने के लिए हमने जीएसटी इंट्रोड्यूस किया है और जीएसटी का मेन कंपोनेंट ही यही है, सीमलेस क्रेडिट रिजाइम. नाउ अभी प्रीवियस टर्म में क्या होता था माय फ्रेंड्स? ओके, हर एक मैन्युफैक्चरर जो हम मैन्युफैक्चर करते थे उसके ऊपर मुझे एक्साइज ड्यूटी पे करने की. मान लीजिए अगर मैंने
ए नाम का कोई पर्सन कॉटन मैन्युफैक्चर कर रहा है और कॉटन मैन्युफैक्चर करके उसने बी नाम के पर्सन को सोल्ड किया है। तो बी नाम का पर्सन कोई फैब्रिक बना रहा है, ओके। अगेन रिपीटिंग, ए नाम का पर्सन है जो कॉटन मैन्युफैक्चर कर रहा है, उसने कॉटन मैन्युफैक्चर करके बी नाम के पर्सन को सोल्ड किया है और बी जो पर्सन है वो फैब्रिक प्रोडक्शन कर रहा है। नाउ मान लीजिए ए नाम के पर्सन ने 100 रुपीज का कॉटन, 100 रुपीज का कॉटन बी को सोल्ड किया है और अगर इन प्रीवियस टैक्सेशन सिस्टम अगर 10% एक्साइज ड्यूटी चार्ज हो रही है, सो 100 + 10 मतलब 110, ओके। अभी 100 रुपीज के गुड्स में 10 रुपीज एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ऐड हो चुका है। मान लीजिए बी नाम के पर्सन ने ये कॉटन ए के पास परचेस कर लिया और उसने उसमें फैब्रिक, वो कॉटन से उसने फैब्रिक बना लिया। अभी वैल्यू एडिशन करके बी नाम के पर्सन ने वो 200 रुपीज में सोल्ड किया, ओके। नाउ अगेन एज पर 10% एक्साइज ड्यूटी, ओके, 20 रुपीज विल बी चार्ज्ड और उसकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी एंड यूजर को 220। तो मान लीजिए प्रीवियस टर्म में जहां से हमने कॉटन परचेस किया था वहां पर भी हमने 10 रुपीज तो मैंने एक्साइज चार्ज किया ही था माय फ्रेंड्स। अगेन जो वैल्यू एडिशन बी ने किया उसके ऊपर भी एज पर 10% 20 रुपीज चार्ज हो गया, ओके। सो ये डबल टैक्सेशन सिस्टम हो गई, 10 रुपीज पहले पे किया था और अभी 20 पे किया तो 30 रुपीज टैक्स हो गया। ये है कैस्केडिंग इफेक्ट। It is a limitation of previous taxation system, okay। Now अभी मान लीजिए एक्साइज को, okay, गवर्नमेंट ने प्रीवियस टाइम में ये लिमिटेशन दूर कर दी थी। एक्साइज की जगह पर आ गया था मोडवेट एंड सैनवेट। मोडवेट एंड सैनवेट मीन्स इट इज अ सिंपल काइंड ऑफ वेट। मोडवेट मीन्स इट इज moderated VAT and SANVAT means central government value added tax, okay। now it is only a value added tax, मतलब जो पार्टी ने जितना वैल्यू एडिशन किया है उसी के ऊपर टैक्स पे करना है। तो प्रीवियस टर्म में हमने जो देखा कि 100 के ऊपर भी टैक्स पे किया, फिर 200 में हमने उसको सोल्ड किया। तो यहाँ पर क्या होगा, 100 पे तो पे हो ही गया है, वैल्यू एडिशन किया हुई, 200 में आपने सोल्ड किया है, तो अगेन वैल्यू एडिशन गैप इज ओनली 100 रुपीज, तो इसी के ऊपर टैक्स पे करना है, okay। So excise is replaced by SANVAT and MODVAT, okay। next is सेल्स टैक्स जो हम पे करते थे, okay, जो स्टेट गवर्नमेंट चार्ज करती थी, एक्साइज चार्ज करती थी सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सेल्स टैक्स चार्ज करते थे स्टेट गवर्नमेंट, ओके। सो अगेन ये सेल्स टैक्स जो है उसको भी उन्होंने वेट में कन्वर्ट कर दिया कि जो भी पार्टी जितना वैल्यू एडिशन करेगी उसी के ऊपर वैल्यू एडिशन वेट पे करना है, ओके। नाउ अभी मान लीजिए ये मोडवेट सैनवेट एंड वैल्यू एडिशन, इसमें वैल्यू एडिशन के ऊपर ही टैक्स था, बट व्हेन इट कम्स टू टेक क्रेडिट ऑफ द टैक्स, अगर टैक्स क्रेडिट करना है तो कैसे करेंगे, तो ये भी समझते हैं। प्रीवियस टर्म में जो मोडवेट सैनवेट और वेट में था उसमें क्या था माय फ्रेंड्स, इफ यू आर मैन्युफैक्चरर, if you are manufacturer, okay, so हम पे करते थे एक्साइज। if you are a trader, so we are paying VAT, and if we are service provider, so we are paying service tax, okay। If I am manufacturer, I am paying excise duty. If I am trader, अगर मैं मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा हूँ बट सिर्फ वो तैयार हुआ माल लेके किसी और को हैंड ओवर कर रहा हूँ, सो इट इज लायबल टू चार्ज वेट। एंड इफ आई एम सर्विस प्रोवाइडर, सो सर्विस टैक्स चार्ज होता है। अभी मान लीजिए जो प्रीवियस टैक्स की लिमिटेशन थी माय फ्रेंड्स, इफ आई एम अ मैन्युफैक्चरर, ओके, अगर ए नाम का पर्सन मैन्युफैक्चरर है, ओके, और उसने बी नाम के मैन्युफैक्चरर को ही गुड सोल्ड किया है, मतलब ये रॉ मटेरियल था, उसके ऊपर बी को थोड़ी वैल्यू ऐड करनी है, अगेन वो सोल्ड कर रहा है सी को, अगेन इट इज मैन्युफैक्चरर,
अगर सी भी मैन्युफैक्चरर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज यहां पर भी एक्साइज पे हुआ है, यहां पर भी एक्साइज है, तो क्या होगा, और यहां पर भी एक्साइज है। सो एक्साइज हर एक नेक्स्ट बिलिंग में जो भी आप एक्साइज चार्ज करोगे वो प्रीवियस वाला एक्साइज आपको सेटअप मिल जाएगा या क्रेडिट मिल जाएगा। ओके, सो अगर सेम टैक्स को मुझे क्रेडिट करना है तो इमीडिएट हो जाएगा, बट अगर इसका मैं कॉम्बिनेशन कर दूं, ओके, इफ आई एम कंबाइन ऑल दी थ्री थिंग्स, ओके, देखिए अगेन रिपीट कर रहा हूं, इफ आई एम मैन्युफैक्चरर, आप कोई मैन्युफैक्चर को ही सोल्व करोगे तो हर एक ट्रांजेक्शन में एक्साइज ही है। इफ यू आर ट्रेडर, आप कोई दूसरे ट्रेडर को सोल्व कर रहे हो और आगे वाला भी ट्रेडर है, मतलब हर एक जगह पर वेट ही चार्ज होगा। सो वेट कैन बी सेट ऑफ अगेन प्रीवियस पेड वेट, ओके, वेट के सामने वेट सेट हो जाएगा। इफ आई एम सर्विस प्रोवाइडर और मैं कोई थर्ड पार्टी कोई सर्विस प्रोवाइडर को सेल कर रहा हूँ, सो अगेन सर्विस टैक्स के सामने सर्विस टैक्स सेट हो जाएगा। बट मान लीजिए, ओके, ये तीन का अगर कॉम्बिनेशन हो जा रहा है, ओके, ऐसा तो होगा नहीं कि कोई मैन्युफैक्चर होगा नहीं, ओके, किसी को तो कोई तो मैन्युफैक्चर कर रहा है, कोई तो ट्रेडर है, कोई तो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। मान लीजिए अगर ए नाम का पर्सन मैन्युफैक्चरर है, बहुत ध्यान से देखिएगा माय फ्रेंड्स, इफ अ पर्सन नेम्ड ए इज मैन्युफैक्चरर, ओके, उसने तैयार माल खुद बना लिया, मतलब वो मटेरियल ऐसा है कि मार्केट में सोल्ड करने जैसा ही, अभी उसमें कुछ वैल्यू एडिशन करनी नहीं है। ओके, बी नाम का कोई पर्सन है ट्रेडर, ओके, सी नाम का कोई पर्सन है सर्विस प्रोवाइडर, तो देखिए मैन्युफैक्चरर एक्साइज ऐड करके ट्रेडर को पे करेगा, ट्रेडर वेट ऐड करके सर्विस प्रोवाइडर को ऐड करेगा, बिल पेमेंट करेगा, और सर्विस प्रोवाइडर यहां पर चार्ज करेगा सर्विस टैक्स। ओके, नाउ माय फ्रेंड्स, अंडरस्टूड? अगेन एक्साइज के सामने एक्साइज सेट हो पा रहा था, वेट के सामने वेट सेट हो रहा था। अभी यहाँ पर तो बहुत ही सारा ब्लंडर हो गया, एक तो एक्साइज आ गया, दूसरा वेट हो गया, सर्विस टैक्स, मतलब कौन सा टैक्स किसके सामने सेट करे। ओके, ओके, अगर ए ने बी को फोल्ड किया है, ए मैन्युफैक्चरर है, बी ट्रेडर है, तो यहां पर होगा वेट और यहां पर है एक्साइज। तो वेट के सामने एक्साइज कभी भी सेट नहीं होता है माय फ्रेंड्स। सेम अगर ए ने सी को डायरेक्टली सोल्ड कर दिया, ये सर्विस प्रोवाइडर है और ये मैन्युफैक्चरर है, सो अगेन मैन्युफैक्चरर पे करेगा एक्साइज और सर्विस प्रोवाइड चार्ज करेगा सर्विस टैक्स। तो अगेन सर्विस टैक्स के सामने जो प्रीवियस टर्म ने आपको चार्ज हुआ है, सर्विस टैक्स के सामने एक्साइज भी सेट नहीं हो पाएगा। अगेन थर्ड टर्म, अगर बी नाम के पर्सन ने सी को सोल्ड किया है, बी कौन है, ट्रेडर, एंड सी है सर्विस प्रोवाइडर। ओके, सो ट्रेडर क्या लगाएगा, वेट, और यहां पर है सर्विस चार्ज। तो अगेन सर्विस चार्ज कैन नॉट बी सेट ऑफ ट्रेडर। Sir, should I continue or is there any instruction for me? Yes, sir, continue. Now, so it is a limitation कि वेट, एक्साइज और सर्विस टैक्स, ये कोई भी टैक्स किसी के सामने सेट नहीं हो पा रहा था। ओके, सो ये बहुत ही बड़ी लिमिटेशन थी, एंड टू रिकवर एंड टू ऑप्ट आउट ऑफ द लिमिटेशन गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया जीएसटी। ओके माय फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीएसटी इंट्रोड्यूस करने के लिए। मैंने आगे भी बताया सीमलेस क्रेडिट डिजाइन। ओके, ये जो भी आगे वर्ड हमने देखे, ओके, एक्साइज, वेट एंड सर्विस टैक्स, ये तीन वर्ड रिप्लेस होके आ गया जीएसटी। मतलब कोई झमेला ही नहीं है कि एक्साइज के सामने क्या सेट करे, वेट के सामने क्या सेट करे, सर्विस टैक्स के सामने क्या सेट करे। ओनली द सिंगल वर्ड इज देयर, इट इज जीएसटी। मतलब अगर आप इफ यू आर मैन्युफैक्चरर, इफ यू आर ट्रेडर और इफ यू आर सर्विस प्रोवाइडर, ओके, ओनली वन टैक्स इज चार्जेबल। देखो जीएसटी का वर्ड ये वन नेशन वन टैक्स। ओके, सो कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है।
ओके, सो क्रेडिट रिटर्न करने के लिए बहुत ये इजी हो जाता है कि हम क्रेडिट सेट ऑफ कर पाते हैं किसी और के सामने। ओके, सो इट इज अ मेन इंपॉर्टेंट थिंग टू इंट्रोड्यूस सीमलेस क्रेडिट रीजाइन। ओके माय फ्रेंड्स, अब तक हमने 2 टॉपिक डिस्कस किए। वी हैव डिस्कस्ड 2 टॉपिक्स, अगेन वी आर रिकवरिंग इट। नंबर 1, इट इज टाइप ऑफ जीएसटी, हमने देखा सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी। ओके, अभी मुझे जीएसटी कंपेंसेशन सेस बताना बाकी है माय फ्रेंड्स। नाउ व्हाट इज जीएसटी कंपेंसेशन सेस? अभी ये वर्ड क्या है? सो टू अंडरस्टूड इट, इसको समझने के लिए, ओके, जीएस जो प्रीवियस टैक्सेशन टर्म थी और करंट टैक्सेशन टर्म, उसमें 2 डिफरेंट है। ओके, origin based tax and destination based tax. Now what is origin based tax and what is destination based tax? ओके, देखो वो फर्स्ट वाला जो कंपेंसेशन सेस क्यों इंट्रोड्यूस हुआ, ये समझने के लिए हम समझ रहे हैं ओरिजिन बेस्ड टैक्स एंड डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। नाउ माय फ्रेंड्स, व्हाट इज ओरिजिन बेस्ड टैक्स? देखो प्रीवियस टैक्सेशन टर्म यही थी, ओरिजिन टैक्स, ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन। नाउ व्हाट इज ओरिजिन बेस्ड टैक्स? सो जहां पर मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, जो स्टेट में मैन्युफैक्चर हो रहा है, in the same state tax is collected by the government. okay, जो गवर्नमेंट, जो रीजन में हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, वही रीजन में गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है। ओके ओके, सो इट इज कॉल्ड एज ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन, जहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं, जहां से हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। ओके, और इसका लॉजिक भी सिंपल था कि जो गवर्नमेंट, ओके, द गवर्नमेंट विच इज प्रोवाइडिंग फैसिलिटी टू मैन्युफैक्चरर, मान लीजिए कोई गुजरात में प्रोडक्शन कर रहा है और गुजरात गवर्नमेंट उसको फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इट इज अंडरस्टेबल कि जो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है वही टैक्स कलेक्ट करेगा। ओके, सो द सेम गवर्नमेंट जहां से हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो टैक्स कलेक्ट करती थी, ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन। माय फ्रेंड्स, प्रीवियस टैक्स ये सिस्टम पर चल रहा था। Now, अभी गवर्नमेंट को ये क्या रिक्वायरमेंट हो गई कि ओरिजिन बेस्ड को हम चेंज करें, कहां पर आ जाए, डेस्टिनेशन बेस्ड पर। अभी डेस्टिनेशन मतलब क्या कि जो एंड यूजर है, जो पर्सन प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहा है, ओके, जो एंड यूजर है, वो कंज्यूमर जो स्टेट में है, अगेन रिपीटिंग, वो कंज्यूमर जो स्टेट में है वहां पर टैक्स चार्ज होगा। मतलब अगर मैं गुजरात में प्रोडक्शन कर रहा हूं और मेरा एंड यूजर महाराष्ट्र में बैठा है, ओके, सो प्रीवियस टर्म में ओरिजिन बेस्ड में क्या था, गुजरात गवर्नमेंट इज लायबल टू कलेक्ट टैक्स, गुजरात गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती थी, गुजरात गवर्नमेंट। बट न्यू सिस्टम इज दैट कि हम डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स में चले जाएंगे। ओके, सो डेस्टिनेशन बेस्ड में क्या होगा कि जो कंज्यूमर है महाराष्ट्र में, ओके, वो सेट ऑफ करे, महाराष्ट्र गवर्नमेंट इज लायबल टू कलेक्ट टैक्स। चलो, अभी इसमें कौन सा लॉजिक आ गया? आप बोलोगे कि सर ये क्यों, मैन्युफैक्चर तो गुजरात में हो रहा है, तो गुजरात गवर्नमेंट को तो लॉस हो गई, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को तो फायदा होगा, ऐसा कैसे गवर्नमेंट ने सोच लिया? बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन, ये सेशन स्टार्ट करने से पहले ही फर्स्ट सेशन में हमने क्या, फर्स्ट लाइन वी डिस्कस कि जीएसटी इज काइंड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। जीएसटी कौन सा टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स है, वो तो डायरेक्ट टैक्स है ही नहीं। ओके, सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स? ओके, वी आर शिफ्टिंग फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर पार्टी, हम टैक्स को शिफ्ट कर रहे हैं। कोई भी मैन्युफैक्चरर, माय फ्रेंड सोचिए, कोई भी मैन्युफैक्चरर खुद के पॉकेट से टैक्स भरता है क्या? ओके, नो, इट इज शिफ्टिंग टैक्स टू सेकंड, थर्ड, फोर्थ पार्टी, हम टैक्सेशन को शिफ्ट कर रहे हैं। तो गुजरात में हमने प्रोडक्शन किया और मेरा एंड यूजर है महाराष्ट्र में, सो व्हाट इज द लॉजिक? ओके, ये हमने सोच लिया कि आप तो टैक्स तो शिफ्ट कर रहे हो, आप तो खुद के पॉकेट में से पे नहीं कर रहे हो, सो व्हाट इज द लॉजिक कि गुजरात गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करे? ओके,
एट द एंड टैक्स तो कौन पे कर रहा है? यूजर ऑफ महाराष्ट्र, जो एंड यूजर महाराष्ट्र में बैठा है उसके पॉकेट से पैसे जा रहे हैं, तो गुजरात गवर्नमेंट क्यों पैसे कलेक्ट करे? ओके, सो विद द सेम लॉजिक, okay, with the same logic, GST is introduced and it is not origin based tax, it is destination based tax. मतलब अगर एंड यूजर आपका जहां पर है, अगर आपका एंड यूजर गुजरात में ही है, तो अगेन गुजरात गवर्नमेंट इज हैविंग पावर टू चार्ज टैक्स. बट अगर मेरा एंड यूजर महाराष्ट्र में कहीं पर बैठा है, केरला में, तमिलनाडु में, पंजाब में, गोवा में, कहीं पर भी है, so the same state is having the power to collect tax. तभी आप बोलोगे कि सर ऐसा करने से तो जो मैन्युफैक्चरिंग वाले स्टेट्स है उनको लॉस हो जाएगी. ओके माय फ्रेंड्स, पूरे इंडिया में जितना प्रोडक्शन होता है पूरे इंडिया में, उसमें से 4 ही स्टेट ऐसे हैं जो 50% रेशियो होल्ड करते हैं. ओके, फ्रॉम दी ऑल ओवर इंडिया 50% कौन 4 स्टेट का होल्डिंग है? तो पहला तो हमारा गुजरात ही है भैया. ओके, सेकेंड वन है महाराष्ट्र. ओके, थर्ड वन तमिलनाडु, एंड फोर्थ वन इज आंध्र प्रदेश. ठीक है, टोटल इंडिया का 50%, अराउंड 50% प्रोडक्शन ये 4 स्टेट में ही होता है माय फ्रेंड्स. ओके, अभी तो क्या हो गया, हमने बोल दिया ओरिजिन से हम कहां पर लेके गए, कहां पर लेके गए? डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स. तो क्या होगा, प्रोडक्शन किया 4 स्टेट ने और बेनिफिट मिल रहा है बाकी स्टेट्स को. ओके, तो इसके लिए भी लॉजिक है. ओके, एक तो हमने बोला कि इनडायरेक्ट टैक्स है, ये जो एंड यूजर है, ओके, वो खुद के पॉकेट से पे कर रहा है. सो इसीलिए गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी बनाई कि जहां जो स्टेट में कंज्यूमर है वही गवर्नमेंट, द सेम स्टेट इज लायबल टू कलेक्ट टैक्स. ओके, अभी जो मैन्युफैक्चर वाले स्टेट हैं, मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स, उनको तो लॉस हो जाएगी. और जो कंज्यूमेबल वाले, जो जहां पर कस्टमर अवेलेबल है, जो कंज्यूमेबल स्टेट है, उनको बेनिफिट है. और यहां पर हो गई लॉस. हमारे फर्स्ट विजन से हमें ये लगता है कि भैया हमने तो ओरिजिन बेस्ड टैक्स को निकाल के कर दिया, क्या कर दिया? डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स कर दिया. तो अभी क्या होने वाला है, जो मैन्युफैक्चर कर रहा है उसको तो लॉस हो गई, और जो कंज्यूमर कर रहा है उसको, जो लास्ट जहां पर कस्टमर है, उसको तो बेनिफिट ही बेनिफिट हो गया. वो गवर्नमेंट ने तो कुछ भी नहीं किया, वहां पर नहीं गवर्नमेंट ने फैसिलिटी दी, नहीं कोई मैन्युफैक्चरर ने मैन्युफैक्चर किया, फिर भी गवर्नमेंट को फायदा हो गया. अरे तो ऐसा कैसे चलेगा? ओके, सो यहाँ पर एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक मतलब अप टू 5 इयर्स, भैया सेंट्रल गवर्नमेंट, अभी पीएम कौन है पता है ना हमारे? प्राइम मिनिस्टर हमारे मोदी साहब है यहाँ पर ना. मोदी सर का ओरिजिन कहाँ से? गुजरात. वो गुजरात में ही तो सीएम थे ना, चीफ मिनिस्टर. अभी वो जहाँ के बैठ गए सेंटर में, सेंट्रल गवर्नमेंट में. तो कोई भी ऐसा तो नहीं सोचेगा कि मेरे गुजरात को लॉस हो जाए. ओके, सिंपल लॉजिक है, ऐसा तो कोई भी नहीं सोचेगा. तो अगेन गवर्नमेंट हैज गिवन गारंटी, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये गारंटी दी है अप टू 5 इयर्स, कि अप टू 5 इयर्स अगर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट को, अगेन रिपीटिंग, अगर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट को उसके प्रीवियस ईयर के रेवेन्यू में कोई डेफिसिट हो रहा है, ओके, मान लीजिए कि 15-16 में गुजरात गवर्नमेंट ने 1000 करोड़ की रेवेन्यू की थी, अभी 16-17 में उसकी रेवेन्यू हो गई सिर्फ 600 करोड़, तो डेफिसिट कितनी हो गई? 400 करोड़. डेफिसिट क्या हो गई? 400 करोड़. ओके, तो ये जो भी डेफिसिट है इट इज पेएबल बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. ओके, और ये 400 करोड़ कहां से कलेक्ट करेंगे? तो ये हो गया जीएसटी कंपेंसेशन सेस, जो वर्ड हमने आगे छोड़ के आए थे माय फ्रेंड्स, कि क्यों जीएसटी कंपेंसेशन सेस हम लगाएंगे? तो जीएसटी कंपेंसेशन सेस ये कलेक्ट कर रहे हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग वाले स्टेट्स हैं उनको लॉस ना हो जाए, और गवर्नमेंट ने ये 5 इयर्स के लिए गारंटी ली है. ओके, अगेन ये जीएसटी कंपेंसेशन सेस हर एक प्रोडक्ट पर नहीं है माय फ्रेंड्स. ओनली 6 प्रोडक्ट्स आर देयर, ओनली 6 प्रोडक्ट्स. वन इज पान मसाला,
Okay. Second one is tobacco. Okay. Third one is cigarette. Third one is cigarette. Fourth one is coal. Fifth one is cars, and another one is soft drink. Now, on the sixth product, GST compensation cess is liable. ओके और हर एक का रेट अलग अलग है, ऐसा नहीं है कि हर एक प्रोडक्ट के ऊपर सेम है. कार्स में भी दो प्रोडक्ट है, दो टाइप की कार्स है, एक तो नॉर्मल कार एंड वन काइंड ऑफ एसयूवी कार्स. ओके, एसयूवी कार्स के ऊपर टैक्सेशन स्लैब थोड़ा ज्यादा है कंपेंसेशन सेस का. ओके, एक वर्ड हमने सीखा था आईजीएसटी. ओके, नाउ हमने ये सीखा कि सीजीएसटी और एसजीएसटी ये दोनों का इक्वल कंट्रीब्यूशन है. ओके, नाउ व्हेन इट कम्स टू आईजीएसटी, ये तो सिर्फ सिंगल कंपोनेंट टैक्स है, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही इसको कलेक्ट कर रही है, बट एट द एंड गवर्नमेंट इसका भी डिस्ट्रीब्यूशन करती है आईजीएसटी कलेक्ट करने के बाद. अभी ये क्वेश्चन है कि आईजीएसटी कौन सी स्टेट्स को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट कौन से स्टेट को देगी. मान लीजिए हमने गुजरात में प्रोडक्शन किया और हमने महाराष्ट्र में सोल्ड किया है, तो इट इज इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन. इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन है, जैसे हम स्टेट की बॉर्डर से बाहर चले गए तो उसको बोलेंगे इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन. ओके, नाउ इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन फॉल्स अंडर आईजीएसटी. ओके, नाउ अभी आईजीएसटी का कंट्रीब्यूशन कौन से स्टेट को दे हम, मतलब गुजरात को दे या महाराष्ट्र को दे. बताओ फ्रेंड्स, किनको दे, गुजरात को दे या महाराष्ट्र को दे. सो अगेन हमने क्या बोला है, जीएसटी इज नॉट ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन, इट इज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन. ओरिजिन कहाँ है, ये है ओरिजिन हमारा और ये हमारा डेस्टिनेशन. ओके, सो किनको टैक्स देना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट हमेशा सिर्फ वो महाराष्ट्र को ही आईजीएसटी में से कंट्रीब्यूशन निकाल के दी. ओके, सो it is regarding CGST, SGST, IGST. Okay, GST compensation cess. Okay, now it's 4:45. So I'm handing over the session to the organizer. I think my given time is over now. Certain things are again remaining to discuss because in stipulated time period I am having only 45 minutes. सो ये टाइम पीरियड में सिर्फ इतना ही कवर कर सकता हूं, बाकी और बहुत सारे टॉपिक्स है डिस्कशन करने के लिए. विल डिस्कस ऑन लेटर ऑन. हैंड ओवर टू द ऑर्गेनाइजेशन. थैंक यू. Hello. Shall I stop my screen sharing? Yes, sir. We can come up, sir. Hello. Hello. Yes, Mehul, sir. Am I audible? Yes, yes. Yes, sir. We can sum up the session. Hello. जी sir. Yes, sir. So indeed, it was a great session and great interactive session. Though we, the faculties and students, both of them learned a lot with your in-depth insights. So I would like to thank you, sir, on behalf of Palol University, Palol Institute of Commerce, our faculty fraternity, Dean, sir, the whole webinar team. I would like to thank. So I would like to thank you on behalf of my students also, sir. And I wish that such great seminars would be conducted in the future, and you share your valuable insights with we faculties as well as student fraternity. We are very much delighted for the knowledge which you have shared with us, sir. So thanking you a lot, sir. Thank Thank you, you. sir. Thank you Again, very much, thank sir. you to all the organization for giving Mehul. me the platform, because it's Yeah, Mehul. one kind of passion. Yes, sir. Yes, sir. That's Yeah, right. Mehul sir.
we will surely organize a short workshop for the GST, and we will surely invite to you for that, because of due to the some span of the time. Okay, we never covered that whole thing. So once again, on behalf of the Parul University Faculty of Commerce, our Dean Sir, Dr. Rajay Trivedi Sir, all the students and the connected group like the webinar teams, our branding team, on behalf of all the persons, thank you so much for this wonderful session, sir. And it's a very informative and enlightening session on GST, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Yes, sir. Sir, please leave it. Okay. Thank you.